Now I'm requesting Mr. PV Singh sir to start with this webinar session. Thank you so much. Thank you, Rohit. Uh, Good morning, Dr. Paul, and good morning, everyone. I'll welcome to the 42nd series of webinar of the Azadi Ka Amrit Mahotsav. Dr. Paul is assistant professor and former head in Institute of Environment and Development Studies, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh. Dr. Paul is completed his PhD in Environment Biology, 1996, and his research area is plants and environmental pollution, biodiversity, and phytoremediations. He has more than 25 years of experience in this research associate at CSIR, National Botanical Research Institute, Lucknow. Also, he worked as a lecturer in Department of Environmental Science in Veer Bahadur Singh Purvanchal University, Jaunpur, Uttar Pradesh. Dr. Paul is guided more than 55 students as for a PhD, MTech, MSc, and MPhil. He has completed one research projects also that is sponsored by University of Grant Commission, New Delhi. He has published more than around 90 published research papers in different countries, and and also he published 3 books, one from India and 2 from Germany. He worked as a editor, member of editor board in different journals, newsletters, in different journals. Also, he's participated and organized more than around 90 national and international conferences, seminars, workshops, and Dr. Paul, his recognitions of the awards. Some of important awards are Fellow of the Academy of Environment Biology, India 2001, Fellow of Society Life Science, India 2020, Fellow of Local Environment Social Association, India 2020, Fellow of Environment Social Welfare Society, India 2021, Archana Gold Medal 2015. Also, he is awarded Dr. APJ Abdul Kalam Environment Protection Award 2019 for contribution in the field of biodiversity conservation and environment protection by Blue Planet Society, Prayagraj, India, during global conference on our biodiversity of our food and our health, held at Botanical Survey of India, Prayagraj, Uttar Pradesh, India, during 21 to 22 May 2019, and other awards also in he's received. He is the member of Asian Council of Science Editors. Also, he is the member of a District Environment Committee, Jhansi, Uttar Pradesh. Today we have a very experienced, learned, distinguished speaker who will be sharing his expertise and experience on biodiversity for sustainability. Thank you very much. Now I hand over to Dr. Amit Pal. Sir, over to you.
Sir, am I visible and audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, thank you. Sir, please start your presentation. Namaste and good afternoon, everybody. Especially Dr. Singh, PV Singh sir, and my student Dr. Vivek Kumar Singh. I think he is also joined here itself. Yes, sir. Today, my topic is biodiversity for sustainability. So first of all, I am telling that why I had choose this topic, as your area was also sustainable development, and 2015 United Nations meeting, they emphasize that the biodiversity can play an essential role for goal of sustainable development, that is SDG 2030. So that's why I had taken the topic biodiversity for sustainability, for our earth, for our well-being, for any living organisms. So now I start. The conspicuous element of the art is the existence of life, and the salient features of life is its diversity. Diversity means variety and variability among living organisms. Biodiversity forms the foundation for sustainable development, constitute the basis for our environmental health of our land, uh, and is the source of economic and ecological security for our, not for our, even our coming generations too. As we are belongs to developing country, to developing country like India, biodiversity provides the assurance of food, many raw materials such as fiber, clothing, materials for shelter, fertilizer, fuel wood, and medicines, and so on. And our India itself, a treasure house of medicinal plants of our country since Vedic era. And everybody knows about Ayurveda. More than thousands of plants at that time in Sanskrit describe their medicinal uses for human as well as animals also, our domestic animals. Although they don't know botanical name or geological name in Sanskrit, they already described it. And recently, our even Patanjali, Baidyanath, Dabur, whatever the companies like multinational, they are using our knowledge of Ayurveda from Ayurveda. Next. Now I come to what is biodiversity. The definitions is from United Nations Convention on Environment and Development at Rio Summit 1992. We called it Art Summit. Why it is Art Summit? As more than 173 United Nations at that time participate, and they anonymously defined the what is biodiversity. So first definition I quoted from United Nations 1992 UN deliberations. The biodiversity means the variability among living organisms from all sources, including inter alia, terrestrial, marine, and other aquatic ecosystem, and the ecological complexes of which they are a part.
This includes biological diversity within the species and ecosystem, whatever may be either terrestrial or aquatic. Although the word biodiversity first scientific in science introduced Walter Rosen in 1986. After that, the word biodiversity or biological diversity come to in our text. There are three types of biodiversity. In gene-based genetic, on the species-based species, and another one is ecosystem level. Either maybe invertebrate, vertebrate, or plant kingdom through bacteria, algae to Homo sapiens. All are come to these groups. And another type of biodiversity is alpha, beta, and gamma diversity. Alpha means difference, variety among same community. Or when we talk about two different community or two forest ecosystem or two different state or two different region, that is gamma beta diversity. And when we in a large scale includes alpha and beta diversity, that is gamma diversity. Next, now come to the actual whatever today's topic, sustainable development. In 1987, under the auspices United Nations, there was a committee, United Nations Commission on Environment and Development, under the leadership of Director General Dr. H.G. Brundtland, and published the report was Our Common Earth. The definition given by the Mrs. Brundtland was development which meets the need of present generation without compromising the need and meet of future generation. That means whatever we using from our natural resource, our right, we can use it, but we have to look after coming our younger brother, sister, and our new generation who are coming to the earth. They also same right, equivalent right to the mother earth. So we should not compromise their need and meet of our future generation. How can it achieve that? It can be made possible maintaining the ecological processes, preserving the biodiversity, and control consumption of natural resources. The objective of sustainable development was the basic needs of life should be available to all human beings. हम लोग जिसको कहता हूँ मैं हिंदी में थोड़ा कर रहा हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट शायद बैठे हैं, they are undergraduate student, they requested me, sir please tell also Hindi. So I should try to bilingual, sir. Singh sir. Basic needs of life should be, हम लोग के टाइम में बहुत पहले एक फिल्म आया था रोटी कपड़ा मकान, तो ये तीनों चीज के लिए जो हमारे जो बेसिक नीड्स है, तो फुल्ली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वी आर डिपेंडेंट ऑन आवर बायोलॉजिकल रिसोर्सेस. लेकिन उसको कैसे यूज करें? कंजम्पशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स शुड बी यूटिलिटी बेस्ड. हमारा जो बेस होगा माने व्हिच काइंड ऑफ हम लोग कैसे यूज करो या कौन सा यूज करो, कौन सा रिन्यूएबल रिसोर्स है, जो सो दैट आफ्टर 5 and 10 years it may be again regenerate in our natural system or our mother earth. Economic growth should be made within the safeguard limits to safeguard the interest of future generation to come. जो भी हमारा GDP है हमको हमेशा देखना चाहिए कमिंग जनरेशन का, उसमें कोई दिक्कत ना है. They also can sustain their life as usual. Ecological process should continue. इसमें हम इकोलॉजी पढ़ाते हैं तो इको बैलेंस किसी भी कीमत में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें पूरा हमारा जो बायो जियोकेमिकल साइकिल से लेके एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इट. जो हमारे जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है, नेचर जो इटसेल्फ मेंटेन इट. The development and maintenance of environment should run simultaneously. Just look
एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इज सेम, माने हेड एंड टेल ऑफ सेम कॉइन। अगर मैं पूरा एनवायरनमेंट को एम्फेसाइज करूंगा तो डेवलपमेंट रुक जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और भी बढ़ेगा, हमारा जीडीपी और भी घटेगा। तो सो डेवलपमेंट एनी कंट्री, maybe developed nations or developing nations, they always do their basic objectives was how they can economically viable, more viable। तो डेवलपमेंट रुकना नहीं चाहिए, तो इसीलिए एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट साइमल्टेनियसली उसको मेंटेन करना जरूरी है। रीजनल इम्बैलेंस इन कंजर्वेशन ऑफ नेचर शुड बी मिनिमाइज्ड और रिमूव, जितना संभव मिनिमाइज करे या संभव है तो उसको रिमूव कर दे। The international fraternity should unite to fight the menace of pollution, क्योंकि pollution हमारा कंट्री या आजकल जैसे हमारा रशिया यूक्रेन के ऊपर जो भी कर रहा है, ठीक है, वो यार पर्सनल ही है, लेकिन उसमें जो बमबारी या जो भी हो रहा है वो तो सिर्फ यूक्रेन या रशिया में सीमाबद्ध नहीं है, क्योंकि पॉल्यूशन ऐसा चीज जो डिस्पर्स हो रहा है आसपास पे कंट्री। इवन खाड़ी युद्ध में हमारे मैंने अरबियन सी हमारे बॉम्बे उपकूल में भी आ गया था, बहुत सारी फिश प्रजातिज एंड फाइटोप्लैंक्टन बहुत मरे, सब लोग जानते हैं, लिटरेचर में देख सकते हैं आप, बुक्स में। तो पॉल्यूशन ऐसा है वो केवल एक कंट्रीज में सीमाबद्ध नहीं है, तो इसीलिए हमारे जो इंटरनेशनल जो फ्रेटर्निटी है, जो भी ग्रुप है, इनको इसके ऊपर माने ये करना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसीलिए 2015 में मैंने जो कहा था 195 कंट्रीज नेशंस एग्रीड हुआ था, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDG उसको टारगेट रखा था बाय द ईयर 2030। यूनाइटेड नेशंस के अम्ब्रेला में ये हुआ था, 195 कंट्रीज पार्टिसिपेट थे। जैसे 1992 में भी रियो समिट में आवर कंट्री वाज 46 सिग्नेटरीज आउट ऑफ 173 कंट्री असाइन किया था बायोडाइवर्सिटी, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में। तो यहाँ में भी 195 कंट्री जो यूनाइटेड नेशन के अम्ब्रेला में है वो ज्वाइन किए थे। तो मैंने उन्होंने अकम्प्लिश किया था bringing together their respective governments, business, media, institution of higher education and local NGOs to improve the lives of the people of their respective countries। और टारगेट था बाय द ईयर 2030। तो इसीलिए उसको शॉर्टली यूनाइटेड नेशन ने उसको SDG 2030 रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। तो इसमें सबसे पॉइंट था एलिमिनेट पॉवर्टी, इरेज हंगर, एस्टेब्लिश गुड हेल्थ एंड वेलबींग। ये जो तीनों चीज है, मैं बहुत लोग जो पुराने लोग हैं दे रिमेम्बर आवर लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। शी वाज हेडिंग द अंडर माने UDC माने डेवलपिंग नेशन नहीं है, जो हमारे जैसे देश गरीब देश, इन्हीं लोग के ओर से उन्होंने एक वहाँ में स्लोगन दिए थे यूनाइटेड नेशन में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में 1972 में। उन्होंने यही कहा था, जो फर्स्ट जो UN जो SDG 2030 का जो गोल है एलिमिनेट पॉवर्टी, उन्होंने कहा था इफ यू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट देन यू हैव टू इरेडिकेट द पॉवर्टी। उन्होंने डेवलपिंग नेशंस की ओर से ये चीज यूनाइटेड नेशन में 1972 में जिक्र किया था। आज भी वो एजेंडा में वही है, एलिमिनेट द पॉवर्टी, इरेज द हंगर, एस्टेब्लिशमेंट गुड हेल्थ एंड वेलबींग, प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि सिर्फ BSc MSc या PhD करने में ही या डिग्री लेने में ये नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है, तो हमको एजुकेशन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे हमारे चाइनीज प्रोवर्ब है, इफ यू थिंक फॉर 1 year देन यू हैव टू ग्रो राइस या पेडी, इफ यू थिंक फॉर 100 years देन यू हैव टू गो ट्री, एंड यू हैव तो ये योर ऑब्जेक्टिव इज फॉर एवर, मैंने आपका गोल अगर हमेशा के लिए, देन यू हैव टू एजुकेट द पीपल ऑफ योर कंट्री। तो ये इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा ये करता है, जो हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन, उसको हायर एजुकेशन हो चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, यू हैव टू एजुकेट योर पीपल ऑफ योर कंट्री। इम्प्रूव क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, एज वी बिलोंग्स टू डेवलपिंग नेशन माने ट्रॉपिकल कंट्रीज, तो मोर देन 80% जो डिजीज है हमारे ट्रॉपिकल कंट्रीज का, उसको ट्रॉपिकल बिकॉज ऑफ वाटर। माने तो जस्ट यू इमेजिन, हमारे चाहे कोई भी कॉमन डिजीज व्हाटएवर, जंडिस, कोलेरा, टाइफाइड, एनीथिंग,
malaria, whatever, because of only water. तो क्लीन वाटर एक बहुत बड़ा माने आने वाला दिन में भी हो सकते हैं, कहा जाता है वाटर के लिए क्यों ना थर्ड वर्ल्ड वॉर हो, है ना, ऐसा चल रहा है। तो वाटर एक बहुत बड़ा इश्यूज है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जो आजकल हमारे गवर्नमेंट ऑल द सैनिटेशन के लिए काफी इनिशिएट कर रहा है आफ्टर मोदी। जो घर घर में उन्होंने कोशिश कर रहा है, जो बाहर जो ये करते हैं टॉयलेट और ये देने के लिए। वाटर का भी हमारा बुंदेलखंड में चल रहा है ऑलरेडी वाटर के लिए। तो ऐसे रेस्पेक्टिव कंट्री अपने अपने देश में अपने हिसाब से इनिशिएटिव ले रहा है। क्रिएट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एवरी कंट्रीज के इवन डेवलप नेशंस भी अपने इकोनॉमिकली दे आर और भी मोर ग्रोथ कर रहा है, करने जा रहे हैं। तो डेवलपिंग नेशंस तो और भी ज्यादा करना चाहिए। इंक्रीज इंडस्ट्री, इनोवेशंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तीनों चीज हमारे देश में भी काफी रैपिडली चल रहा है। रिड्यूस इनइक्वालिटी, ये सबसे बड़ा समस्या है किसी भी कंट्रीज के लिए, चाहे रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो, चाहे इकोनॉमिक हो, एग्रीकल्चर हो, किसी भी चीज में। मोबालाइज सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, आजकल बहुत सारी कॉन्सेप्ट डेवलप्ड है, इको विलेज, इको सिटीज, इको गार्डन, इस तरह करके चल ही रहा है ऑलरेडी। तो आशा है हर कंट्रीज में ऐसा चल रहा होगा। इन्फ्लुएंस रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, इसमें प्लास्टिक को हम लोग को जैसे कहते हैं वेस्टेज, माने जो नॉन डिग्रेडेबल चीजों को हम लोग एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहिए। जो बायोडिग्रेडेबल चीज को हम लोग रीयूज रिसाइकल कर सकते हैं, इसीलिए मैक्सिमम यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स को हम लोग को ध्यान देना चाहिए। ऑर्गेनाइज क्लाइमेट एक्शन, जो ऑलरेडी आईपीसीसी बनी है, उसमें बहुत सारी हर साल प्रोटोकॉल भी है, ये चल भी रहा है डिफरेंट कंट्रीज में, एक एक साल अंतर उसमें मीटिंग होता है, अपने अपनी कंट्री रेस्पेक्टिव कंट्री उसमें काम कर रहे हैं। बिल्ड पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ये पार्टनरशिप है आप और मेरे की नहीं, स्टेट वाइज नहीं, बिटवीन स्टेट्स पे भी होना चाहिए, सिर्फ कंट्रीज में लिमिटेड नहीं होता, बिटवीन कंट्रीज में भी होना चाहिए पार्टनरशिप। ये जो SDG 2030 जो गोल्स है उसको फुलफिल करने के लिए सबकी कोऑपरेशन जरूरी है, डेली लेबर से लेके इंडस्ट्रियलिस्ट तक और पंचायत से लेके हमारा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तक, सबके आपस में एक ये होना चाहिए। जो लीडर हमारे देश की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसमें भी माने चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चाहे इस तरह आजकल तो मिलता नहीं, या गांधी जी, चाहे इस तरह लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए नेता में, जो देश को आगे बढ़ाने के लिए करप्शन फ्री ये होना चाहिए, एटीट्यूड होना चाहिए, और आपकी आइडियोलॉजी ऐसा होना चाहिए स्वामी विवेकानंद की तरह होना चाहिए, जो एवरीबॉडी टिल डेट, स्वामी विवेकानंद ओनली 39 ईयर्स में सब एवरीबॉडी नोज, उनका देहांत हुआ था, लेकिन उनका जो फिलोसफी है हर यंग जनरेशन में, इवन हमारे जो पंडित नेहरू ने भी एक बार कहा था हर यंग को अपनी साथ एक स्वामी जी का बुक रखना चाहिए। तो इतना इंस्पिरेशनल लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए, तभी हम सस्टेन SDG 2030 में पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट आ रहा हूँ सस्टेनेबिलिटी एंड लाइवलीहुड, क्योंकि मेरा इसमें यही था लाइवलीहुड को, खासकर विलेज लाइवलीहुड, क्योंकि हमको बापू ने भी कहा है शायद मेरे देश को देखना है तो गांव जाना चाहिए। तो मैंने कुछ गांव की तस्वीर, अपने गांव का भी है, खुद खींचा, मेरे एक रिसर्च स्टूडेंट से प्रियंका, उसने काफी मदद किए थे। मैं गांव जाता हूँ, जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ से जो मिलता है ले आता हूँ। अभी जो अपने आने वाला जो स्लाइड से मैं उसमें आपको दिखाएंगे। तो लाइवलीहुड क्या है? लाइवलीहुड कैन बी डिफाइंड एज द एक्टिविटीज, जो भी हमारे डेली लाइफ में होता है, द एसेट एंड द एसेट्स that jointly determine the living gain by an individual or household, दोनों के लिए, अपने लिए या हमारे household के लिए। When it is come to an individual, a livelihood is the ability of that individual to obtain the basic necessities in life, already I had told, which are food, water, shelter and clothing. Therefore, all activities involved in finding food, searching for water, shelter, clothing and all necessities required for human survival at individual and household levels are referred to as livelihood. Approximately 90% of rural households are involved in farming activities. जो हमारे country like जो countries है developing nations,
इन लोग का फार्मिंग से आइदर एग्रीकल्चर, फिशिंग या जो भी एनिमल हस्बेंडरी हो, मोस्टली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट, इसमें रूरल लाइवलीहुड का एक चार्ट है। इसमें मैंने रेड से 3 चीज को हाईलाइट किया हूँ, एक है फार्मिंग, फिशिंग एंड रेजिंग लाइवस्टॉक। जो हमारे गांव की जो जीवन शैली है अभी भी 90% से ज्यादा इसी पे डिपेंडेंट है। दोज नॉट आर अर्बनाइज्ड सोसाइटी, माने ओनली फॉर माने विलेज सोसाइटी में जो भी आजकल है इन्हीं लोग के लिए खासकर। नेक्स्ट, तो रूरल लाइवलीहुड इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, कल्टीवेशन, फार्मिंग जो भी है, एनिमल हार्डिंग इंक्लूडिंग लाइवस्टॉक फार्मिंग, हंटिंग एंड गैदरिंग, वेज लेबर, ट्रेडिंग एंड वर्किंग, आर्टिशियन वर्क जैसे वो वीविंग है, केविंग है, चाहे घर पे हो या समिति के द्वारा माने एनजीओस के थ्रू जैसे भी चलता है। प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन ट्रांसपोर्ट एंड अदर अवेलेबल सर्विसेज, फैचिंग एंड कैरिंग, बेकरी, बास्केट वीविंग एक्सेट्रा। ये मेरे गांव का ओरिजिनल में जहाँ पे जन्म लिया था, ये मेरे पेरेंटल विलेज है। उसमें जो काम कर रहे इवन किसान लोग, ये भी मेरी खेती है। जस्ट यू लुक एट दिस, पास में कुछ वाटर बॉडीज है छोटा छोटा। एग्रीकल्चर के साथ साथ यहाँ में छोटे छोटे मछली पालन भी होते, क्योंकि हमारे यहाँ में अराउंड द ईयर हमेशा पानी बरसता रहता है, तो हमेशा जलीय स्तर हमेशा एबव माने इसमें जैसा नॉर्मल से ज्यादा ही रहता है, तो पानी कभी सूखता नहीं। तो इसमें लोग जो बिसाइड एग्रीकल्चर छोटे छोटे मछली भी पालन करते हैं, सो दैट दे आर जो डेली नीड्स से बेसिक जो हमें, क्योंकि चावल और मछली लोग ज्यादा खाते हैं, भात मांस हमारे में कॉमन शब्द है, मैं खाता नहीं हूँ जदियो ऑल दो, लेकिन ठीक है 99% लोग ये रहते, तो इनका जो बेसिक नीड्स है राइस, पैडी एज वेल एज फिश, ये दोनों चीज एक साथ चलता रहता है। ये मेरे अपनी गांव का अपनी खेती का फोटो है। नेक्स्ट, ये हमें इन लोग का जो जीवन शैली है, जो किसान लोग रूरल लाइवलीहुड की मैं दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट, ये जो फिशिंग मैंने कहा था, वो कैसे मछली पालन होता है, फिर पकड़ते फिर मार्केट में ले आया। इसमें मेरे जो स्टूडेंट का नाम लिया, उन्होंने फोटो खींची थी, प्रियंका ने, उन्होंने शेयर किया मेरे को, ओरिजिनल फोटो है। नेक्स्ट, ये जो लाइवस्टॉक की मैंने बात किया हूँ, ये भी ओरिजिनल फोटोग्राफ से गांव की। नेक्स्ट, चलते जाओ। नेक्स्ट, ये जो डेली लेबर्स से वेजेस है, ये नारेगा के काम कर रहा है यहाँ के लोग, माने गांव के लोग, इन्हीं लोग कैसे डेली लाइफ ये करते हैं। नेक्स्ट, ये जो गांव की जो मार्केट है, उसमें जो भी इन लोग का डेली जो माने बेच के इसी को ही माने एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाहे आप कह सकते हैं, इसको बेच के इनका जो डेली लाइवलीहुड इसी पे डिपेंडेंट है। ये कुछ चित्रों में दिखा रहा हूँ। ये जो बेकारी की बात किया था, गांव में जो बेकारी कैसे होते हैं हैंडमेड, इसमें कोई मशीन नहीं इन लोग के पास, क्योंकि इकोनॉमिकली दे आर नॉट सो मच वायबल, तो ते अपने घर पे ऐसे ही बनाते, फिर शहर में ले आते या बाजार में मार्केट में ले जाते हैं। ठीक है, ऐसे गांव की औरतें घर पे ऑफ टाइम में इस तरह काम करता है, बैम्बू से काम करता है। तो इस तरह और भी इसी ये भी एक गांव की सीन है। तो नेक्स्ट, ये यूनाइटेड नेशन का 2000 उस पे ये था, स्लोगन था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे में, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स, क्योंकि मैंने भी लाइवलीहुड्स के बारे में ही कह रहा था। तो यूनाइटेड नेशन ने ये थीम दिया था, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लानेट, जो हम मेरे लिए साथ साथ पूरा धरती, मेरे जो प्लेनेट है उसको कैसे सस्टेन करेंगे, तो उसमें फॉरेस्ट और लाइवलीहुड्स ये उन्होंने ये थीम दिया था। तो मैंने कुछ आपसे शेयर कर रहा हूँ, फॉरेस्ट का जो इम्पोर्टेंस या लाइवलीहुड कैसे सस्टेन करता है। ये सब लोग जानते हैं, ये कॉमन है, मैंने शहर में भी इसी पत्ती में हम लोग इसको बोटेनिकल नेम ब्यूटिया मनस्पर्मा बोलते हैं, पलाश है उसका नाम है, बहुत अच्छा फ्लावर है। उससे इको गुलाल भी, अर्लियर आई वाज इन एनबीआर नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन लोगों ने फर्स्ट टाइम इको गुलाल मैंने बनाया था इसी के फूल से। गर्मी में मैजेंट कलर के फ्लावर आते, पूरा फ्लावर ही फ्लावर रहते, एक भी पत्ती नहीं रहता। और ये पत्ती बेच के गांव के लोग मैंने अपना जो भी है थोड़ा बहुत इनकम, और ये हमारे उधर साउथ इंडिया, इवन हमारा बंगाल में आज भी केला पत्ती से ये करते हैं। तो किसी भी अनुष्ठान में केला पत्ती आज भी बरकरार है, उसी को बेचते हैं। तो लाइवलीहुड में बनाना लीव्स आज भी बहुत गरीबों को मैंने ये कर हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट, ये जो गांव की औरतें, हमारा देश का अभी भी मैक्सिमम पीपल दे आर डिपेंड ऑन फायरवुड, जो घर की जो जलानी, भले हम लोग एलपीजी या सीएनजी में आ रहा हूँ, लेकिन इन लोगों ने आज तक सिलेंडर देखा भी नहीं।
ये जंगल से ये ले जाते, ये बेचते भी, और घर का रोटी भी उसी से बनता है। बगल में आप देख रहे हैं यहाँ में देशी जो उसको ठरी बोलते हैं, महुआ एक फ्लावर है, मधु का इंडिका, इसी से वो बना रहे देशी जो बनता है। तो लेकिन इन लोग का भले ही वो कानूनी ये नहीं है, तो मैंने देखा ना, क्योंकि इसका जीवन शैली लाइवलीहुड इसमें डिपेंडेंट, इसलिए मैंने आपसे देखा रहा हूँ जो रूरल लाइवलीहुड है। नेक्स्ट, ये मैंने जरूर टाइम इंडिया टुडे से लिया था। ये कोरोना की टाइम में जो लाइवलीहुड हमारी बायोडाइवर्सिटी कैसे मैंने सस्टेन किया है। इन लोग गांव की जो लोग हैं शहर से पलायन करके आया था कोरोना की टाइम में, तो आके इनके पास रोजी रोटी नहीं था, नौकरी नहीं था, तो कैसे इन लोग अपने लाइवलीहुड को सस्टेन किया था, इसमें और बायोडाइवर्सिटी का क्या रोल था, ये मैं दिखाने के लिए ये फोटो शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, ये एमपी में चलता है, डायोस्पायरस मेलानोक्साइलन एक ट्री है जिसको तेंदू बोलते हैं हम लोग, देशी इसमें बीड़ी पत्ती है। इसमें कैसे तेंदू कलेक्शन कर रहे लेडीज लोग, और वही फिर फैक्ट्री में बीड़ी कैसे बनता है उसको आज भी चल रहा है। ये फॉरेस्ट का जो लाइवलीहुड में कैसे हमको जीवन को ये करते चढ़ाते, ये जस्ट है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो क्यों मैंने बायोडाइवर्सिटी लिया, ये इम्पोर्टेंस आज नहीं है हमारा, जो मैं एक स्लाइड में शायद लिखा भी हूँ, हमारा जो वेद है उसमें भी कहा ए ट्री इज इक्विवेलेंट टू 10 सन। मैंने हम लोग जो बेटा के लिए, कोई भी माँ या बेटी हमें सुन रहे कल दादी नानी बनेगी, वो भी पोता या पोता नहीं, नातनी या पोती होगी तो रोएगी जरूर, मैक्सिमम औरतें, नॉट एट ऑल। लेकिन पोता होगा तो बहुत खुशी मनाता है, भगवान को चढ़ाते हैं और भी ज्यादा है, भगवान ने सुना इनकी बात। ये हमारे आज भी परंपरा है, मैक्सिमम ये है। लेकिन हमारी वेद ने कहा था जिसके लिए आप रो रहे हो, जिस बेटा के लिए, ऐसे 10 बेटा इतना नहीं दे सकते, एक पेड़ जितना दे सकते हैं। तो इसमें जो एक तो नॉलेज एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है जो मैंने कहा, जैसे चाहे एग्रीकल्चर हो, फॉरेस्ट्री हो, फिशरीज हो, या जो भी है प्रोडक्शन हम लोग करते हैं उसको हम मार्केट में ले आके इंडस्ट्रियलिस्ट को, चाहे नीम प्रोडक्ट हो चाहे आंवला प्रोडक्ट हो, व्हाट एवर में भी, तो हमको इकोनॉमिक बेस देता है। ठीक है, और उसी से ह्यूमन हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। हम लोग शहर वाले जिन लोग हैं आज भी गार्डन में जाते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए या योगाभ्यास करने के लिए, जैसे उसमें साइकोलॉजिकल हो चाहे मेंटल हेल्थ हो या ह्यूमन थोड़ा प्योर एयर मैंने हमको ऑक्सीजन मिलता है, तो ये हमको देता है बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या है, जो इकोसिस्टम जो इम्प्रूव द, चाहे वाटर क्वालिटी हो या एयर क्वालिटी हो, कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देना है, एवरीथिंग जो हमारी इकोलॉजिकल बेनिफिट्स जो कहता है, या हैबिटेट प्रोटेक्शन हो, चाहे जंगल में रहने के लिए हो या हमारे रहने के लिए जो भी मैंने घर के जो फर्नीचर्स वगैरह, तो तमाम चीज हमको वहां से मिलता है। ठीक है, और एक ही कल्चरल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट, घर घर में हम लोग तुलसी हो, या कुछ दिन पहले सावन की पहला शायद इसमें था संडे या मंडे जो भी है, हम लोग जो इसके ये करता हूँ आपकी क्या बोलते हैं, बट सावित्री बट, इसमें मैंने देखा हूँ मैथ्स की प्रोफेसर भी लेडीज है, वहां में जाके धागा बन रहे हैं, पूरी सब्जी ले आया खिला रहे हैं, भलाई पेड़ नहीं खाते लेकिन हमारा कल्चरल या स्पिरिचुअल बेनिफिट कह सकते, उसमें एक साथ हम लोग इकट्ठा होता हूँ, आज भी वो परंपरा जारी है। तो ये तमाम चीज हमको जो बायोडाइवर्सिटी का जो इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट, तो इसमें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, जो बायोडाइवर्सिटी जो ये 2020 का जो गोल था, और ये एक्सपेक्टेड है हमारा डेवलपमेंट दोनों एक माने दोनों तरफ है, हमारी पॉपुलेशन आज जो है इससे 33% बढ़ेगा। अभी हो सकता है हम लोग कुछ दिन बाद चाइना के अहेड हो जाओ, अभी भी चाइना फर्स्ट पोजीशन में, वही में भी मैंने उसमें हेडिंग करूंगा कुछ दिन बाद। तो इसको ध्यान देना जरूरी है डेवलपमेंट के साथ साथ। तो इसके लिए हमको नेचुरल रिसोर्स भी चाहिए। व्हाट एवर वी आर फेसिंग, 3 मेजर प्रॉब्लम जो चाहे डेवलप नेशन हो चाहे डेवलपिंग नेशन हो, सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है आई थिंक मैनीफोल्ड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। जो आप जब से सिविलाइजेशन शुरू हुआ, सेंसस शुरू हुआ 19 सेंचुरीज में, इंडस्ट्रियल इरा आया, हमारी पूरा धरती का आबादी था ओनली 1 बिलियन। विद इन 100 ईयर्स मैंने 2000 में हम लखनऊ में थे, स्टूडेंट थे,
सब लोग खुश है मिलेनियम बेबी पैदा करने के लिए। डिफरेंट एजेंसीज हजरतगंज में वोटिंग लगाया था, जो भी रात में 12 बजे जिसका बेबी पहला पैदा होगा उसको अवार्ड देंगे, चाहे सैमसंग हो, तमाम जो उस टाइम में लखनऊ में मल्टीनेशनल कंपनीज का जो एजेंसीज था। तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लोग खुशी मना रहे हैं मिलेनियम बेबी पैदा करने के लिए, लेकिन ये नहीं सोचा विद इन 100 ईयर हमारा पॉपुलेशन 6 टाइम ज्यादा हो गया। 2031 दिसंबर 6 बिलियन पीपल हो गया धरती, जो विद इन 100 ईयर्स 6 टाइम पॉपुलेशन इंक्रीज। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग मैनी फोल्ड इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो जैसी पॉपुलेशन मेरे बारे है, चाहे इंडिया हो किसी भी कंट्रीज का हो, हमारा जो प्रेशर है चला गया नेचुरल रिसोर्स पे। तो नेचुरल रिसोर्स को हम लोग ओवर एक्सप्लॉइटिंग करने शुरू कर दिया, एक्सप्लॉइटेशन, मेनी फोल्ड इंक्रीज पॉपुलेशन, देन ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। और साथ साथ जैसे मैंने एक्सप्लॉइटेशन ओवर करने लग गया, चाहे वेस्टेज हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, पोल्यूशन भी बढ़ गया है। तो ये 3 चीज को कैसे ये कर सकते, तो 2020 का जो टारगेट था, मैंने बायोडाइवर्सिटी को इनहेंस करेंगे, तो चाहे टेरेस्ट्रियल जो हमको 17% लिखा था इंक्रीज करने के लिए, ऐसे 10% जो सामुद्रिक कोस्टलाइन एरियाज को डेवलप करना, इनहेंस करना, बढ़ाना है। तो ये 2030 का जो उसमें भी गोल था, कैसे ही उसको बढ़ाया जा सकता है। तो एक तरफ डेवलपमेंट होगा तो हमारा 2050 में हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, और उस हिसाब से हमारा नेचुरल रिसोर्स का डिमांड कितना बढ़ेगा, वो ये है। तो हाउ रिकॉन्साइल दिस, ये जो फिगर है उससे आप जस्ट यू इमेजिन। नेक्स्ट, तो डायरेक्ट ड्राइवर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस का जो मैंने ऑलरेडी 3 मेजर कॉजेस ऑलरेडी कहते, इसमें और भी लिखा है। लैंड यूज चेंजेस हो रहा है क्योंकि एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जैसे हमारे यूपी सबसे लिस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया आ गया, बिकॉज ऑफ बिलोंग्स टू गेंजेटिक सिविलाइजेशन। जब से एग्रीकल्चर शुरू हुआ, नदी मात्रिक सभ्यता हम लोग मानता हूँ, गंगा के दोनों ओर गेंजेटिक प्लेन में सबसे 1/3 इंडियन रहते हैं आज भी, माने उत्तरांचल से लेके बे ऑफ बंगाल तक जो गेंजेटिक प्लेन है। तो जस्ट यू इमेजिन, तो इनका जो प्रेशर है कृषि में है, तो साथ साथ जैसे डिमांड बढ़ा है तो एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन हुआ, फॉरेस्ट कवर घटते गया, तो आज यूपी लिस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया। नेक्स्ट, ये जो थ्रेट्स है हमारा बायोडाइवर्सिटी का, मैंने 3 मेजर चीज कहा हूँ, जो फ्रेगमेंटेशन हो, चाहे कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कहा जाता है। तो हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस, या इन्वेसिव स्पीसीज, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज जो बाहर से, चाहे यूकेलिप्टस हो, चाहे आर्जिमोन मैक्सिकाना हो, इसके कारण हमारा माइक्रोब्स हो, चाहे जहां जहां आप यू कैन सी, जहां जहां यूकेलिप्टस की पत्ती गिरता है वहां में, चाहे गेहूं की खेती हो, चाहे आलू का हो, सब्जी हो, प्रोडक्शन कम होता है ऑटोमेटिकली। उसमें यूकेलिप्टिन एक सिक्रीशन उसमें ये होता है यूकेलिप्टस से, जो माइक्रोब्स को मार देता है। जो सॉइल में ह्यूमिक एसिड फॉर्मेशन के लिए माइक्रोब्स की जरूरत होता है, वही प्रोड्यूस करता है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड से हमारा ह्यूमस, जो कोई भी लैंड का जो सबसे अपर मोस्ट लेयर ब्लैकिश टाइप लगता है, उसका हम लोग ह्यूमस बोलता है, वो लेयर। तो उसमें ह्यूमिक एसिड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, और ह्यूमिक एसिड फॉर्मेशन होता है बैक्टीरिया माइक्रोब से, और यूकेलिप्टिन उस माइक्रोब्स को खत्म कर देता है, तो ह्यूमस फॉर्मेशन नहीं होता, सॉइल क्वालिटी डिग्रेड होता है, प्रोडक्टिविटी घट जाता है। तो बाकी जो स्पीसीज है वो हमें चाहे इंसेक्ट हो, फ्रॉग हो, स्नेक हो, या पीकॉक हो, या हो, तो धीरे धीरे घट जाते हैं, पूरा बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है ऐसे करके। नेक्स्ट, तो अगर बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होगा तो रिड्यूसिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस थ्रू सस्टेनेबल बीट एनवायरनमेंट, तो हमारा जो नुकसान होगा उसके लिए क्या कहे, कैसे करे, तो हमको बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट या कंजर्वेशन जो आजकल है, तो 2 प्रकार की, एक है इंसिटू कंजर्वेशन और एक है अनदर वन इज एक्सिटू कंजर्वेशन। इंसिटू कंजर्वेशन मींस विद इन द नेचुरल हैबिटेट, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, जहाँ पे मैं हूँ आज, जहाँ से हजारों साल से रह रहा हूँ, तो उसको बाय साइंटिफिक या बाय माने एडमिनिस्ट्रेटिव जो लेजिस्लेटिव मेजर, जैसे हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वाटर कंट्रोल एक्ट है, एयर कंट्रोल एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, तमाम लेजिस्लेटिव मेजर्स है ना। तो ऐसे साइंटिफिक मेथड है इन सिटू एंड एक्सिटू। इन सिटू मेथड जो एक्सिटू मेथड के लिए सिंपल एग्जांपल है, जैसे हम लोग कोल्ड स्टोरेज में रखता हूँ,
तो कोल्ड स्टोरेज है, या हम लोग साइंटिफिकली उसको जीन बैंक भी बोलता हूँ, जिसमें इस तरह डिफरेंट एरियाज में हमारा देश में भी है। प्लांट्स जीनोटिक के लिए, प्लांट जीन्स के लिए IRI न्यू दिल्ली में है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। ऐसे फिश के लिए, गेंजेटिक फिश के लिए लखनऊ में है नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्स। कोल्ड वाटर फिशरीज के लिए भीमताल में है, बफेलोस के लिए कर्नल में है, एरिड चून के लिए जोधपुर में, ऐसे करके डिफरेंट। राइस के लिए पटन चेरू में है, हैदराबाद के बगल में एक। तो ऐसी बहुत जगह में जीन बैंक खोला है, अलग अलग स्पीसीज के लिए, अलग अलग वेराइटीज के लिए। वो है एक्सिटिव कंजर्वेशन। इवन शहर में जो हमारे जो बोटानिकल गार्डन या जूलॉजिकल गार्डन है, वो भी वन काइंड ऑफ एक्सिटिव कंजर्वेशन है। तो प्रॉपर्ली हमें वेटरनरी डॉक्टर से लेके सब कुछ रहते हैं मैनेजमेंट के लिए। लेकिन इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन जो है वो है नेचुरल हैबिटेट, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, या एलिफेंट प्रोजेक्ट है, टाइगर प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, स्नेक प्रोजेक्ट, ऐसे करके डिफरेंट एरियाज में हमारा कंट्रीज में है। तो सो फार मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के जो डेटा है, according to Botanical Survey of India and Geological Survey of India, we have around 101 national parks, 553 wildlife sanctuaries, and 18 biosphere reserves, and different kinds of tiger projects, elephant projects, crocodile projects we have. तो गवर्नमेंट का हमारे देश की इनिशिएटिव है, और टिल डेट ईयर बिफोर लास्ट आवर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनाइटेड नेशन ने टाइगर के लिए अवार्ड भी मिला, एवरीबॉडी नोज इट। रिसेंट पास्ट मैंने हमारे पन्ना टाइगर रिजर्व मैंने विजिट भी किया था जून में, तो हमें टाइगर मिले भी है बहुत 2.5 फीट नजदीक में। मैंने टाइगर से देखा भी हूँ, वीडियो भी बनाया हूँ। तो अर्लियर हमारा पन्ना टाइगर रिजर्व में कहा जाता है 12 ओनली टाइगर था, अभी वो मोर देन 100 हो गया विद इन 5-6 ईयर। और मध्य प्रदेश को इसीलिए मैंने अवार्ड भी मिला स्टेट टाइगर के लिए। तो ऐसे गवर्नमेंट बहुत सारी इनिशिएटिव ले रहा है अपने अपने रेस्पेक्टिव फील्ड में, जो सो दैट बायोडाइवर्सिटी माने सस्टेनेबली एनवायरनमेंट भी तैयार हो, बायोडाइवर्सिटी भी इंक्रीज हो, है ना। नेक्स्ट है, तो सर टाइम तो ये हो रहा है ना, हेलो, तो ये मैं एक एग्जांपल दिया हूँ जो ट्री का, इसमें फोटो में देखिए एक ट्री कितना लोगों को, मैंने कहा था फूड शेल्टर एंड क्लॉथ जो देते हैं। इसमें एक मीटिंग चल रहा था गांव के इस पे, तो जस्ट एक मैंगोफेरा इंडिका ट्री के नीचे कितना लोग बैठे हैं छाव में, है ना। तो आप सोच सकते हैं अभी जो मॉडर्न ये है हमारे जो पहले GT रोड में मैंने बचपन में गया था, देखा था बहुत 100 साल पुराना ट्री लगा हुआ था, लेकिन अभी 4 लेन 6 लेन के उसमें सब चला गया है। तो ये जस्ट एक इम्पोर्टेंस के लिए मैंने ये स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट, जो मैंने कहा था हमारा जो अकॉर्डिंग टू वेदा उसमें कहा है दश कृपा समावापी दशावापी समाव्रत दशारथ समापुत्रो दशापुत्रो समाद्रुम। माने उसमें इंग्लिश में प्लांटिंग ए ट्री इक्वली बेनिफिशियल एज हैविंग 10 सन। इसका जो मीनिंग है ये आज नहीं, मोर देन 10,000 इयर्स बैक हमारे जब वेद जिसने लिखा है, जिस महापुरुष जिस मनीषी ने लिखा है, तो उनको भी ज्ञान था जो एक पौधा हमको माने बायोडाइवर्सिटी का क्या इम्पोर्टेंस है ना। हमारे ऋग्वेद ने क्या कहा, थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स इफ यू वांट टू एंजॉय द फ्रूट्स एंड हैप्पीनेस ऑफ लाइफ, अगर आप जीवन में खुश चाहते हो, आनंद में बिताना चाहते हो, देन टेक अप सिस्टमेटिक प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, है ना। जो हमको ट्री लगाना जरूरी है, ऋग्वेद कितना हजारों साल पहले मनुष्यों ने लिख के गया था। ऐसे उपनिषद कहता है द गॉड हु एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स लाइव्स इन एयर वाटर इन फायर एंड ऑल्सो इन ट्रीज एंड हार्ट्स, मैन शुड हैव रेवरेंस फॉर देम। लोग हमेशा उसको इज्जत माने रेस्पेक्ट करना चाहिए, तहे दिल से इनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज भी हम लोग चाहे वरुण देवता हो माने देवता के नाम से, या कुछ दिन बाद हमारे यहाँ में बंगाल में शारदीय आ ही रहा है, आ चुका है, शरद उत्सव मूर्ति बनाना शुरू हो गया ऑलरेडी। तो हम लोग दुर्गा माँ के साथ सिंह रखता हूँ, चूहा रखता हूँ, गणेश जी के साथ, लक्ष्मी के साथ कलम ये कमल फूल जो हमारे नेशनल फॉर मोर रहता है, हमारा नेशनल पक्षी है ना। और कार्तिक के साथ मोर रहता है, गणेश के साथ चूहा रहता है।
इवन महिषासुर, जिसको हम लोग असुर के नाम से जानते हैं, दुर्गा माँ ने वध भी किया था इनके अत्याचार से। इनके पास भी एक महिष है जो आजकल लाइवलीहुड के लिए, जो माने कैटल में हम लोग ज्यादातर शहर में दूध, गाय का तो कमी हो गया, भैंस के हम लोग, तो सोचिए आप असुर का वाहन भी मोह है। तो ये हम लोग को जो पुराने ज्ञान है हजारों साल से, ये किसी धर्म का नहीं, ये हमारे संस्कृति है, जो हिंदू कल्चर है, ट्रेडिशनल हमारे जो आया है पुरखों से, हजारों साल से जो परंपरा चलते आए, हम लोग को सिखाया है। हम लोग एक साथ जीने का तालिका, जो चाहे टाइगर क्यों ना, उसको भी हमारे साथ रहन सहन, हम उसको जिंदा रखूंगा, दैट मीन्स हमारे लाइफ में भी उसको, तो साथ साथ देवी के साथ हम लोग उसको पूजा भी करता हूँ। जैसे मैंने बॉट वृक्ष का नाम लिया था, जो बॉट सावित्री हो, ऐसे ऐसा कोई शायद हिंदू घर, चाहे आपकी गाजियाबाद नोएडा में फ्लैट में क्यों ना हो, शायद कोई हिंदू औरत होंगे जिसके घर में एक तुलसी का गमला भी ना हो। तो हम लोग उसमें शाम को पूजा, पूजा देना मतलब ये नहीं मैंने बहुत ये क्यों, लेकिन उसमें पानी डालता हूँ, उसको जिंदा रख। तुलसी का कितना इंपॉर्टेंस है मेडिसिनल, या नीम का, हम लोग घर में दक्षिण और हमेशा ये नीम का पेड़ लगाया जाता है, क्योंकि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हमारा जो ये है साउथ वेस्ट मानसून का ये है, दक्षिणी हवा 9 मंथ से ज्यादा बहती है, तो दक्षिण की ओर से नीम की हवा आएगा तो घर की जो माइक्रोब्स है या हवा में उसको ये कर देंगे। पुराने जो कॉन्सेप्ट था वास्तु शास्त्रों में ये लिखा गया था, जो दक्षिण की ओर नीम का पेड़ होगा तो अच्छा है। तो सोचिए ये ज्ञान हम लोग का हजारों साल से, किताब की जरूरत नहीं है। आजकल मल्टीनेशनल नीम पेस्ट निकल रहा है, नीम का साबुन निकल रहा है, क्रीम निकल रहा है, नीम से बायोपेस्टिसाइड तक आना शुरू हो गया, जो हमारे हजारों साल पहले हमारे पुरखों ने दे के गया। लास्ट एट लीस्ट ये जो गौतम बुद्ध जी बोध गया में भी गया था, आज भी है वो पेड़, उनको कहा जाता है गौतम बुद्ध, उसको बोधिसत्व, हम लोग बांग्ला में बोधिसत्व वृक्ष बोलते हैं उसको। उसमें बौद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो उन्होंने भी कहा था भूखा मैंने पेट और इसमें बिना शांति के बिना भगवान को भी याद नहीं आता है। तो उन्होंने, उनका ज्ञान भी प्राप्त हुआ उसी पेड़ के नीचे, जो पीपल का, जिसको हम लोग बोधिसत्व बोलते हैं, बोध गया में। तो उन्होंने उसके बाद उन्होंने यही कहा था, ये तो इंग्लिश में, संस्कृत में बहुत अच्छा श्लोक था। तो उन्होंने कहा था द ट्री इज ए पिकुलियर ऑर्गेनिज्म, मैंने कहा है उसका वैचित्र है, मैंने कैसी एक ऑर्गेनिज्म है जो अनलिमिटेड काइंडनेस एंड बिनोवेलेंस। उन्होंने माँ की जो दूध है, स्तन दूध के साथ उन्होंने इसको कंपेयर किया था, जिसका कोई काइंडनेस की माने कोई लिमिटेशन नहीं है, मेक्स टू डिमांड फॉर इज सस्टेनेंस, जो हमारी डिमांड जो सस्टेन करे, जो सस्टेनेबिलिटी जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जो उसको कैसे फुलफिल करता है, एंड एक्सटेंड जेनरसली द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स लाइफ एक्टिविटी, हमारी जो जीवन शैली है, डेली लाइफ है, कोई भी एक्टिविटीज को उन्होंने सपोर्ट करता है। इट एफर्ट्स प्रोटेक्शन टू ऑल बीइंग, जो मैंने पहले स्लाइड में दिखाया था, ऑफरिंग शेड इवन टू द एक्समैन हु डिस्ट्रॉयड, जो लकड़ी काटता है वो भी जब पसीना हो जाता है, काटते काटते थक जाता है, वो भी आके उस पेड़ के नीचे छाव में आके बैठता है रेस्ट करने के लिए। तो इसीलिए गौतम बुद्ध जी ने ट्री को एक पिकुलियर ऑर्गेनिज्म उन्होंने कहा था, जिनका काइंडनेस अनलिमिटेड है, जो मारता है उसको भी उन्होंने शेल्टर दे रहा है, उनको फूड दे रहा है, उनको क्लॉथ दे रहा है। लेकिन हम ह्यूमन रेस जो कैसा है, तो जस्ट यू इमेजिन। नेक्स्ट, तो ये एक अमेरिकन इकोलॉजिस्ट का कोट था, बुक के फर्स्ट पेज में उन्होंने लिखा था, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, destruction of forest, entry of man, disappearance of species। हम लोग ऐसा स्पेसीज है ह्यूमन बीइंग, जहाँ पे हमारा एंट्री होता है वहां से अदर जो लिविंग फॉर्म से सब भाग जाता है वहां से या मर जाता है। बहुत दर्द मैंने कोटेशन है इनका, जो ये मैंने अभी जो हमारा नेशनल ये जो 4 लेन बना है उससे मैंने जिस दिन काटा था उस दिन ही खींचा था। ये फाइकस बेंगालेंसिस से बरगद की पेड़ है, बहुत बड़ा, शायद 500-600 साल पुराना है। ये जो झांसी खजुराहो रोड में है, जिस दिन काटा मुझे दुख हुआ जरूर देख के। यहाँ में लोग, दुकान भी था बहुत लोगों का, लोग यहाँ में रेस्ट करते थे, बहुत बड़ा इनका कैनोपी था, उसमें शेड में आके आज भी मैंने देखता हूँ, जब जाता हूँ इसी कटे हुआ लकड़ी के नीचे भी जानवर आके शेड लेता है दोपहर में टाइम में, तो मरने के बाद भी वो जीप को शेल्टर दे रहा है।
और ये जो राइट एंगल में मैंने राइट साइड में डियर ह्यूमन इफ यू डोंट डिस्ट्रॉय मी, पेड़ कह रहे हैं हमसे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुआ था जो लास्ट ईयर 2 साल में कोरोना जिन लोगों ने देखा, मैंने देखा, मेरे कॉलीग हमारे छोड़ के चले गए उस टाइम में। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए चाहे ब्लैक मार्केट हो, चाहे नेता लोग को तो मिल गया, साधारण इन जनरल लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, कितना लोग बिना ऑक्सीजन सिलेंडर में मरे हैं। आज इतना पेड़ पौधा होता जो यूनाइटेड नेशन की जो मैंडेटरी है, एटलीस्ट 33% जो जियोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन हम लोग अभी भी फार बिहाइंड है, 21% के आसपास हम लोग नेशनल एवरेज है, जो होना चाहिए 33% फॉरेस्ट कवर। अगर पेड़ को हम ये करेंगे, वो खुद कह रहा है, हमको दोस्त बनाया, उसने शेक हैंड कर रहा है, कह रहा है आई विल गिव यू शेल्टर, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन, जिसके लिए हजारों लोग मरे हैं ऑक्सीजन की कमी से। वो कह रहा है हम देंगे तुमको, सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगा, आई विल गिव यू, है ना। तो इसी के साथ मैं आपको नेक्स्ट थैंक यू कहना चाहता हूँ। सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Dr. Amritpal. I am Dr. Dhamija from Skill Council. तो आपने बहुत एक इतना अच्छा कवरेज किया, इतना अच्छा कोरिलेशन किया कि मुझे अब लग रहा है कि पेड़ों का जो जैसे आपने I could see the connect with trees, with environment in your voice. But आप ये एक बात बताइए कि how do we go forward with development? एक तरफ से हम कहते हैं कि हमें अपना विकास करना है, हमें आगे बढ़ना है. So for that we require land, we require energy, we require. It's not necessary that we should deforest. That's why concept of sustainable development आया, इसी कारण ही है, क्योंकि डेवलपमेंट तो जरूरी है, हमारे जो बेसिक ने फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, जरूरी हो, लेकिन उसमें प्रोसेस से, आपकी मैकेनिकल प्रोसेस से हम लोग टोटली, जैसे प्रदूषण की हम बात करें, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। अभी जैसे मेरी एक स्टूडेंट जो बगल में बैठी है प्रियंका, मैंने उसको एक टॉपिक दिया, मैं रिसर्च स्टूडेंट लेना छोड़ दिया हूँ लास्ट 5 and 6 ईयर, तो लेकिन लिया हूँ, मैंने उनको काम दिया सस्टेनेबल माइनिंग एनवायरनमेंट। यहाँ में हमारा बुंदेलखंड में ओपन कास्ट माइनिंग का बहुत ज्यादा चलता है। समर में तो आप मैंने उसके आसपास 10 मिनट्स खड़े होंगे, आपका बाल पूरा सफेद हो जाएगा विदिन 5 to 10 मिनट्स। मोस्ट जो प्रॉब्लम है डस्ट है ना, जो हमारे सांस के साथ, चाहे 2.5 माइक्रोन हो, 10 माइक्रोन जो सीपीसीबी का आंकड़ा है, तो मैंने ये अपने आंखों से देखता हूँ, ऑलमोस्ट रेगुलर फ्रीक्वेंटली हम लोग जाता हूँ विजिट करने के लिए। तो मैंने इनको ग्रीन बेल्ट डिजाइन के लिए माइनिंग के चारों ओर, मैंने प्लांट की बात की, इसीलिए प्लांट में मैं कैसे, क्योंकि माइनिंग रोक नहीं सकता हूँ, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी, चाहे रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे आप नोएडा में जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो, हमें भी यहाँ से पत्थर जाता है हमारा बुंदेलखंड से, बुंदेलखंड की ग्रेनाइट पूरा वर्ल्ड में फेमस है। तो यहाँ मैंने ओपन कास्ट माइनिंग, क्योंकि ये जो डेली लेबर है उन लोग का माने लाइवलीहुड भी है, तो इसको हम बंद भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रदूषण को कंट्रोल मिनिमाइज करने के लिए मेरे पास आपने वो जस्ट ट्रांजिशन वाला डस्ट को कम करने के लिए ये जो प्लांट है उसमें एक मेजर कैरेक्टर, बहुत कैरेक्टर है उस प्लांट में। हमारे बॉडी में जैसे ये हेयर होता है, बाल, ऐसे प्लांट में एक ये होता है ट्राइकोम, लिप सरफेस में ट्राइकोम होता है। तो जिन लिप में ट्राइकोम का नंबर ऑफ ट्राइकोम पर यूनिट एरिया में ज्यादा होगा, तो डस्ट स्कैवेंजिंग नेचर इनका ज्यादा होगा, स्कैवेंज कर सकता है। तो मैं डस्ट टोटली रोध नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसी से ग्रीन बेल्ट डिजाइन करके आपको ऑक्सीजन भी दे सकता हूँ, साथ साथ आपका माइनिंग का मैंने जो चल सकता है, ओपन कास्ट माइनिंग भी चले, और मैंने प्रदूषण को कम कर सकता। तो इस तरह ऑब्जेक्टिव लेके मुझे आगे बढ़ना है, towards minimization of pollution, towards minimization of water uses, towards minimization of sound pollution, not control. तो नहीं, आपने वो जस्ट ट्रांजिशन का भी एक कंसेप्ट सुना होगा, that is started with the coal workers only, कि coal mining में लोगों को because coal mining is now being reduced in most of the countries, they want to switch over to better fuels. तो वो just transition में यही है कि हम जब transit करें from bad fuel to good fuels, we should do it in such a way that there is no destruction, but the benefits are equally distributed.
So your concept that we should minimize, we should when we visit, not control, minimize, towards not minimization of, yeah, we should not even discuss we about should use the maximum use of renewable resource. not देखिए अगर आयरन कोल में यूज करते जाएंगे तो एक दिन खत्म होगा ही, ये तो लिमिटेड है. तो वी शुड माने हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा टुवर्ड्स रिन्यूएबल रिसोर्स का भी, जैसे आजकल सोलर प्लांट या टाइडल एनर्जी का यूज हो रहा है ज्यादा, मैंने बहुत नीदरलैंड सब डिफरेंट कंट्रीज में हो रहा है. हमारा देश में भी टाइडल, मैंने हिमालय में भी देखा हूँ, साउथ इंडिया में भी देखा हूँ, जो खेती के बीच में मैंने पंखा लगा के मैंने इसको ये क्या बोलते हैं विंड एनर्जी को फिर टरबाइन लगा के ये करे. तो धीरे धीरे हो सकता है. सोलर के लिए चल ही रहे. मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव लिया भी है, काफी स्टेट गवर्नमेंट को इनिशिएट कर रहे हैं. जगह जगह जो बंजर जमीन है उसमें सोलर प्लांट बैठा, सो दैट गांव और आपका इलेक्ट्रिसिटी, तो आपकी जो कोयला की जो कंजम्पशन है, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स का कंजम्पशन धीरे धीरे हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स से अगर अल्टरनेट करेंगे. तो इलाहाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, इन लोग जेट्रोपा में काम कर रहे हैं. जेट्रोपा से बायोडीजल जो बायोफ्यूल है ना, तो इस तरह काम चल रहा है मैडम धीरे धीरे. तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव जो टुवर्ड्स use of renewable resource or decrease the maximum use of non-renewable resources. That is what is. तभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल को फुलफिल कर पाएंगे SDG 2030. Mr. PB Singh, are there any more questions? जी सर. So can I thank? Yes, ma'am. Has given an excellent overview and his connect. You know, I can really Thank you, feel sir. Namaste, sir. the emotions in his voice when he was giving the, you know, the about the tree which was once there and now he feels it's not there. So these things really they kindle a question in the mind. कि भाई हाँ ये सब ऐसे क्यों हो? It should be in a better way. So I think your lecture, your talk was something. It has given a direction. It has given, and in fact, it has covered the entire spectrum. You know, my only thing is that every time the agrarian practices are changing, we have so many new crops coming up. We have so many, you know, new ways of farming. So there has to be a change in the ecosystem. But if it is not destructive, if it is positive, then it is good. So that is what I conclude from your talk, which was very good. And I want to thank you for giving such a lucid talk on the entire spectrum of biodiversity and sustainability. Thank you very much. Thank you, ma'am. Namaste, sir. Namaste. Thank you, sir. Thank you very much. आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दे के प्रेजेंटेशन दिया. रूरल एरिया से पैडी क्रॉप पॉन्ड्स एंड वो जो ट्री आपने दिखाया जिसके नीचे मीटिंग हो रहा है, इट्स समथिंग वेरी रेयर जो लोगों को देखने को मिलता है. सो थैंक यू फॉर एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन. थैंक यू, वेरी गुड. Okay, sir. Thank you, sir. Namaste, sir. नमस्कार सर.